Hello and Namaste. Myself Sonali Vishwakarma, your host for today at Talktales Originals. Talktales Originals, यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ लेकर आते हैं जो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल रहे हैं और अपनी स्टोरी से बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. Talktales Originals, conversation that matters. Welcome to today's episode. Every day we hear a lot about artificial intelligence. On the news, at work, on social media. It can feel incredibly overwhelming and, let's be honest, a bit intimidating. If you do not have background in computer science, it's easy to feel left behind. But our guest today is here to change that. Bhavika Unadkat is a senior executive and leader in data and AI enablement based in Melbourne. With over 15 years of experience and recognized as global top 100 investors in data and analytics. She spends her day working with advanced technologies, but her true passion is making that technology useful, ethical, and simple for everyday people. Bhavika, welcome to the show. Hi. Bhavika, let's start there. For someone who does not code or work in IT, the word AI sounds like science fiction. How should an everyday person should think about it? AI, I've been working in technology for 20 years now. Okay. So I would suggest that to look at AI as something that you can use. आप everyday life में use कर सकते हो चीज़ें. और मेरा हमेशा से वही कोशिश रही है कि AI को as a technology या tool या ऐसे मत देखा करो. What is really important is you look at it as a free assistant. जैसे हमें इतने सारे काम होते हैं दिन भर, बच्चों को पढ़ाना है, सीखना है, नई चीज़ें रिसर्च करना है. AI, you look at it as your free assistant, digital assistant, who has heaps of patience for you. So that is something that I always say in everyday life, and the people that I talk to working in the technology, that don't look at it as only people with computer science degree can use AI. AI is not only for one, but it's for everyone. So that is something that I would like to tell everybody. It's for everyone. Start, use, enjoy. It's free and it's your digital assistants. Okay. That is such a relief to hear that. Can you give us some concrete examples of how we can use a digital intern in our daily lives, like both at work or at home? So there are various ways that you can actually utilize AI. AI has multiple n number of benefits. आपने सुना ही होगा आजकल लोग बोलते हैं कि AI से जॉब चले जाएंगे, AI जॉब ले लेगा. The reason being ये बहुत ज़्यादा ये आ रहा है क्योंकि जो रिपीटेटिव टास्क है आप AI से ऑटोमेट कर सकते हो. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कैसे AI एवरीडे लाइफ में यूज़ हो. तो अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखने जाए तो पहला एग्जाम्पल है, हम सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने काफ़ी टाइम से मैथ्स छुआ नहीं होगा या हमने सारे सम सॉल्व नहीं किए होंगे. AI फ्री ट्यूटर है. आप यू कैन गो एंड एक्चुअली पुट अ प्रॉम्प्ट. जैसे हम बात करते हैं, हम एवरीडे लाइफ में हम उनको क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम उन्हें पूछ सकते हैं कि ये हम एक्सप्लेन करो सिंपल लैंग्वेज में. जैसे चॉकलेट एनालॉजी है या फ्रूट की एनालॉजी है, उससे हमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता चल सकती है एज ए पेरेंट. दूसरा, खाने में क्या बनाऊँ, ये हमारा एवरीडे क्वेश्चन होता है. बट यू बी सरप्राइज्ड, देयर आर एप्स ऑलरेडी बिल्ड. जब आपने अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दो ChatGPT में कि मेरे पास 1 2 3 चीज़ है, मैं क्या बनाऊँ, वो एक्चुअली आपको डिटेल में ऑप्शंस दे सकता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं. वो आपको सही मात्रा में राइट मेजरमेंट्स विद द डिटेल प्रोसीजर वो बता. Okay. सो उसके n नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू इन्वेस्टमेंट. जैसे मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं वो अपने यूजुअल काम में बिजी होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का पता नहीं होता, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या होता है. और हमें बैंक्स इतने बड़े बड़े पॉलिसीज़ बेच देते हैं, हम हमेशा फियर करते हैं. आप वो लो ChatGPT में डालो और बोलो समराइज़ कर दो 5 लाइन्स में और मुझे एक्सप्लेन भी कर दो.
मल्टी लैंग्वेज में वो आपको एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए आई ऑलवेज से दैट AI इज अ फ्री असिस्टेंट जिसमें काफ़ी पेशेंस है। It's true. As you have already answered our next question, which is, can AI replace human jobs? So you have already answered that. So our next question is there any three easy steps to start, like for our listeners who wants to take action right now? श्योर, इनफैक्ट अभी आप अगर देखोगे ऑनलाइन तो क्लॉड जो है एंथ्रोपिक AI, उसके फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। आप उसकी लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, और गूगल जेमिनाई जो आपके हर एक के मोबाइल में आजकल आ जाता है, ट्रांसलेट भी कर देता है, उसकी भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। और वो कोर्सेज क्या करते हैं, आपको एक्चुअली समझाते हैं कि डिटेल में जो बैकग्राउंड थिंकिंग है AI का। अभी AI ऐसा मार्केट है कि आई वुड से दैट AI will not replace jobs, but humans who are not using AI will replace the jobs by humans who are using AI. So that is why it's very important that you understand कि कैसे AI काम करता है। तो अगर वो आपका इंटरेस्ट है, और एंथ्रोपिक के जो कोर्सेज हैं मैंने खुद ने बल्कि किए हैं, वो आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे वो डिकोड करता है, कैसे वो चीज़ें डिटरमाइन करता है। क्योंकि अभी इंडस्ट्री में काफ़ी काम चल रहा है, जैसे सेफ्टी है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, क्यों यूज़ किया जाए। तो ये जो कोर्सेज जब आप करते हो तभी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स भी पता चलती हैं, और उसका रियल मेकिंग क्या है, उसकी बैकग्राउंड में कैसे चीज़ें चलती है। अगर वो आपकी क्यूरियोसिटी है तो वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे के कोर्सेस है, सेल्फ लर्निंग है। और आपको अगर ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना है तो स्टार्ट से ही कर लो, बट वो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, फ्री सर्टिफिकेशंस है। एंड AI इज़ द न्यू वर्ल्ड, जो हम सबको पता है। So that's a great way to start, but if you're not there, you can start basic. जैसे आपके emails लिखना है किसी को कि मैं politely कैसे बोल दूँ कि मुझे आना नहीं है, या मेरे पैसे वापस कर दो। इनवॉइस हम सारे करते हैं ये चीज़ें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें हम बैठ के सोचते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आपको व्हाट्सएप में भी AI इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो पोलाइटली हाँ बोलना है, ना बोलना है, क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें आप उस AI को करवा सकते हो आपके पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी हैं कि अगर हम AI को जो पिक्चर्स दे रहे हैं, मतलब हमने सोशल मीडिया पे ओपनली अपने पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर रखे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी फ़ोटोज़ का गलत यूज़ कर सकता है, एज इन उसको न्यूड बना देना या मतलब गलत तरीके से यूज़ करना? तो क्या हमें पता चल सकता है कि ये AI ने बनाया है, मतलब हम पता कर सकते हैं ये? हाँ, आप देख सकते हो। आप इनफैक्ट मैं काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, आप आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी मिटा सकते हो AI की मदद से। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉम्प्ट्स है, आप जाके देख सकते हो कि ये मेरे नाम है, ये मेरा पिक्चर है, इसके रिलेवेंट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप वो AI से रिट्राइव कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे डिजिटली मिटा दो। तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे उसके प्रोज है, उसके कॉन्स भी है। जैसे आपने कहा कि न्यूडिटी और ये सारी चीज़ें भी होती है, बट एट द सेम टाइम अभी वही मैं पहले जब आपको एल्यूट करी थी, मैं खुद इंडस्ट्री में काम करती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इसको सेफ बना सके, क्योंकि अभी सबको अवेलेबल है। और स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स काउंसिल बोर्ड पे बैठती हूँ, तो वहाँ पर कैसे हम हमेशा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो सिर्फ AI बड़ों को ही नहीं, सबको अवेलेबल है। तो जितना उसकी अच्छाई है उसकी बुराई भी है, बट एट द सेम टाइम अभी लॉज आ रहे हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे गवर्न कर सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये इश्यूज़ ना आए। अभी इंडस्ट्री में काम जारी है जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बट वो आपको आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कहाँ पे क्या यूज़ हुई है AI की मदद से आप एटलीस्ट डिटरमाइन कर सकते हो। पहले बहुत मुश्किल था, बट अभी आप क्लॉड में या ChatGPT में प्रॉम्प्ट डालो, वो या गूगल में आप जेमिनाई है उसमें प्रॉम्प्ट डालो, आपको सारी डिटेल्स मिल सकती है। ओके।
Let's start rapid fire. I'll ask you a question and you have to answer it in 3 seconds. One word that best describes you. Fun. What's one thing you have learned about yourself this year? I'm very adventurous. Okay. One app you can't live without. LinkedIn. What you like the most, podcast or books? Podcast, because no time to read the books. Okay. What's your favorite comfort food? Indian food. If you could teach AI human value, what would it be? Empathy. Empathy. Okay. Would you rather have AI assistant or human assistant? I'll be really honest, AI assistant. Okay. What is the coolest AI tool you have used recently? Claude. Okay. One skill you wish you could instantly master? Reading people's mind. Oh, that's a great skill you want to learn. Would you trust AI to give you life advice? I would say yes and no, if that's a valid answer. If I can elaborate more than 3 seconds. Sure. Only thing is, sometimes it depends on the questions that I'm asking. If it is a well-researched, I would certainly negotiate or discuss with AI. But at the end, human brain plays a key role. Exactly. That's why I say yes and no. Why not interacting with that? As I said, it's my digital assistant, so I would certainly have some conversation, but ultimately the decision will be mine. Okay, great. Thank you so much, Bhavika. I hope you enjoyed the rapid fire round. And this is the small token of love from us to you. Thank you so much. It was lovely talking to you. As you're doing great, so can we please get your signature? One more chapter, one more breath. Talk Tales Originals, come on in. Talk Tales Originals, let it. Thank you so much for watching Talk Tales Originals. Please like, share, and subscribe.